Hello everyone. So today we are starting off with a new module, that is module number 4, and the module number 4 is basically a transition between your continuous time signals and discrete time signals. I have talked about it in the first video itself when I was talking to you about the overall syllabus distribution. So sampling. So when I talk about sampling, the most basic definition which I can provide you is like it is basically a process of conversion of a continuous time signal into a discrete time signal. Okay, so we are going to talk a lot about different properties, different requirements in this sampling part. Okay, by itself this is a topic which will have its questions, so we will be discussing questions as well, and it is one of the, and why it is required, why do we do sampling is an important question that will be answered very shortly. Okay, but before we start, one positive thought: once you become fearless, life become limitless. Okay, so यही एटीट्यूड को लेकर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो देखो, आज का जो हमारा मॉड्यूल है दैट इज सैम्पलिंग, मॉड्यूल नंबर 4. तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि इट इज़ बेसिकली अ कन्वर्जन ऑफ अ कन्वर्जन समझ लो, या आप समझ लो ट्रांजिशन समझ लो. ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन ट्रांजिशन ऑफ अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू a discrete time signal. Okay, so you have a continuous time signal, you put it through a sampler, and at the output of the sampler what you get is a discrete time signal. Okay, so ये है basic definition of your sampling. Now the very first question that comes into your mind कि क्या ज़रूरत है sampling की? Why are we not dealing with the continuous time signals, and why do we need the discrete time signals? Okay, this is the very basic and very like the prima facie question which might come into your head कि क्या ज़रूरत है. So before I get into the technical terms of this, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल की मदद से मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, देखना. लेट्स से एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक स्कूल का. ओके, सो लेट्स से ये हमारे पास एक स्कूल है. ओके, मैं एक सैम्पल साइज यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ आपके लिए. तो देखो, ये स्कूल है, इसका एक प्रिंसिपल है, लेट्स नेम ही और शी एज पी. Okay, now we are saying that there are 20 classrooms in this school. Okay, so first classroom, this is the first classroom, so on to let's say यहाँ पे हम बोलते हैं 5. Okay, and so on to let's say this is 4 rows and 5 columns. ऐसे इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. सो वी हैव क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 5 तक 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन टू यहाँ पे हमारे पास होगा क्लास नंबर 20. Okay, so that's the way it will be distributed, and every class is having a strength of 50 students. Okay, हर क्लास में है 50 स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी है 50 स्टूडेंट्स. सो टोटल स्ट्रेंथ विल बी, टोटल सैम्पल साइज बोलते हैं अगर हम इसको, टोटल सैम्पल साइज इज इक्वल्स टू, देखो दैट विल बी 20 इंटू 50, दैट इज इक्वल्स टू 1000 स्टूडेंट्स. ओके, सो टोटल 1000 स्टूडेंट्स है. अब प्रिंसिपल जो है ही और शी मेक्स एन अनाउंसमेंट कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक देना हो, तो ही और शी कैन कम टू द प्रिंसिपल. ओके, सो हर स्टूडेंट के मन में कोई डाउट्स है, कोई फीडबैक्स है, तो हर स्टूडेंट चाहता है कि वो जाके प्रिंसिपल से ये चीज़ें डिस्कस करे. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली एवरी स्टूडेंट गोज and he or she gives the feedback, he or she gives the like they put up their complaints. Okay, and principal listens to that. ठीक है, सो ये पहला केस की हम बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू द प्रिंसिपल एंड टेलिंग द his or hers feedback or putting up any complaint. So total अगर मैं बात करूँ, टोटल यहाँ पे इनपुट्स बात करते हैं, दैट विल बी अ बेटर टर्म टू यूज. टोटल इनपुट, क्योंकि स्टूडेंट कोई इनपुट देता है, करेक्ट. सो टोटल इनपुट्स कितने होंगे यहाँ पे? 1000 होंगे, बिकॉज हर स्टूडेंट यहाँ पे दे रहा है. एंड नाउ द प्रिंसिपल ही और शी लिसन्स टू दोज फीडबैक्स एंड अकॉर्डिंगली मेक्स द चेंजेस. ओके, फाइन. नाउ लेट्स लुक अप टू अ सेकेंड केस. ओके, सो यहाँ पे आप लोग एक समझ रहे हो कि 1000 का सैम्पल स्पेस एक बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस है. अगर प्रिंसिपल को 1000 कंप्लेंट सुनने हैं, सो इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो.
ठीक है, वही अभी क्या करते हैं, प्रिंसिपल सोचता है कि यार ये प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, आई एम नॉट रियली एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी, बिकॉज ऑब्वियसली 1000 लोग अगर आएंगे आपके पास एंड ईच एंड एवरी वन इज टेलिंग यू देयर डाउट्स, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू मैनेज दीज मेनी डाउट्स. ओके, सो ही और शी डिसाइड्स कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव केस हम लोग लेके आते हैं कि जहाँ पे हर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. ठीक है, हर क्लास जो है, जो हर क्लास है, 50 लोगों का क्लास है, उसमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स जो है पिक करो और ये 2 स्टूडेंट्स को आप अपने डाउट्स बताओगे एंड ये 2 स्टूडेंट्स जो है वो आपके क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे. सो अब जो भी क्वेरीज है, जो भी कंप्लेंट्स पुटअप करना चाहते हो, जो भी फीडबैक आप प्रोवाइड करना चाहते हो, अब इन दोनों स्टूडेंट्स के थ्रू जाएंगे. करेक्ट है, जो पहले इंडिविजुअल स्टूडेंट अपना क्वेरी या डाउट पुटअप कर रहा था, अब ये 2 स्टूडेंट्स जो है दे विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब टोटल इनपुट्स कितने हो जाएंगे मुझे बताओ. नाउ टोटल इनपुट्स विल बी, मतलब अभी बेसिकली कितने बच्चे जाने वाले हैं प्रिंसिपल के पास. सो दिस विल बी 2 into 20 क्लासरूम्स है हमारे पास. सो 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे. तो आप समझ सकते हो कितना मैसिव ड्रॉप है यहाँ पे, जस्ट बाय टेकिंग अप दिस वन इनिशिएटिव कि जहां पे आपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर लिया एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो जाके अपने कंप्लेंट्स को प्रिंसिपल के पास जाके दे रहा है. सो नाउ द एफर्ट हैज बीन ट्रिमेंडसली रिड्यूस्ड. करेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये अप्रोच जो है वो काफी बेटर अप्रोच है. आपके सारे डाउट्स भी प्रिंसिपल सुन पा रहे हैं एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल. सो द जॉब ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑल्सो ईज्ड एंड योर जॉब ऑफ पुटिंग अप द डाउट्स इज ऑल्सो फुलफिल्ड. ये बात सही है, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया. तो यही कुछ काम करता है आपका सैम्पलिंग भी. ओके, अभी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के बारे में हमने एक डेफिनेशन मैंने बोला था आप लोग को कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो होता है वो द वैल्यू इज प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट, ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट. करेक्ट बात है, ये हमने बोला था. इसका क्या मीनिंग है कि लेट्स से अगर मेरा एक कोई सिग्नल है यहाँ पे, लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगुलर सिग्नल, एक सेकेंड, लेट्स से ये कोई मेरा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, तो लेट्स से 0 to 5 सेकेंड्स के लिए ये सिग्नल प्रेजेंट है. दिस इज योर एक्स ऑफ टी. तो इसकी वैल्यू 0 पे भी प्रेजेंट है, 1 पे भी प्रेजेंट है, 2, 3, 4, ये जो इंटीजर इंस्टेंट्स है इन पे तो प्रेजेंट है ही, प्लस इसके साथ साथ मुझे अगर कोई 0.1, 0.0001 पे भी पूछे तो भी इसकी वैल्यू प्रेजेंट होंगी. करेक्ट है, इसका मतलब क्या है, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सच सिग्नल्स आई विल हैव टू टेक n नंबर ऑफ सैंपल्स. समझ में आ रहा है, एक तरह से इनफाइनाइट सैंपल्स की मुझे जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी. तो यहां पे ऐसे केस में मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डीलिंग विथ अ लार्ज, एक तरह से आप समझ लो एक लार्ज सैंपल साइज. ठीक है, विथ अ वेरी लार्ज सैंपल साइज है एंड इट इज पोटेंशियली इनफाइनाइट. करेक्ट है, पोटेंशियली हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट है ये. करेक्ट है. सो अभी कोई भी सिग्नल है, अगर मैं उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू टेक यूज ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड एज कंप्यूटर. करेक्ट है, जब तक आप किसी सिग्नल को किसी कंप्यूटर में, किसी डिवाइस में आप पुट अप नहीं करते, एज ए इनपुट प्रोवाइड नहीं करते, तब तक उस सिग्नल पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. अगर लेट्स से मुझे कोई सिग्नल में मॉड्यूलेशंस करने हैं, जैसे मैं स्पीच सिग्नल है, ओके, मैं चाहता हूं कि मैं उसको रिकॉर्ड करूं मेरे पीसी में, उसको मैं स्टोर करूं पीसी में, एंड लेट्स से जैसे आप अपना वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो उसमें क्या होता है, जो भी बोला जाता है, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग दैट गोज थ्रू द माइक इन टू द मोबाइल, फिर वो जो डेटा है वो डेटा ट्रांसमिट होता है आपके कंप्यूटर में एंड थ्रू कंप्यूटर वो जाता है यूट्यूब पे एंड यूट्यूब से आप देखते हो. करेक्ट है. सो अगर ये जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, अगर वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ही एज इट्स ओन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें इनफाइनाइट बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी.
समझ में आ रहा है आप लोग को, क्योंकि इट इज हैविंग सो मेनी सैंपल्स कि उन सैंपल्स को कलेक्ट करके उनको स्टोर करना इट विल बिकम अ इम्पॉसिबल टास्क। इसीलिए व्हाट वी डू इज कि हम चाहते हैं कि कुछ फाइनाइट सैंपल्स की मदद से हम उस पूरे सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि रादर देन कि हम 1000 इनपुट्स देकर वही डाउट्स को प्रिंसिपल के पास लेकर जाए, ठीक है, उसकी जगह पे हम क्या करें, छोटे से इनपुट्स की मदद से, छोटे से सैंपल साइज की मदद से उन सभी डाउट्स को प्रिंसिपल के पास भेज दे। समझ में आया? सो प्रिंसिपल मतलब आपका टारगेट साइट समझ लो, आपका कंप्यूटर समझ लो, जिसमें आपको ये डेटा इनपुट करना है। तो रादर देन गिविंग 1000, अगर 40 में काम हो सकता है, सो व्हाई नॉट गो विथ 40। समझ में आई बात? यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो भी काफ़ी कम यूज़ हो रहा है, एंड यहाँ पे आपका एक तरह से आपका जो टारगेट था कि सारा डेटा प्रोवाइड होना चाहिए, वो भी आप डेटा वहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहे हो। समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ योर सैम्पलिंग। ओके, एकदम अभी आप लोगों को कोई पूछेगा कि सैम्पलिंग क्या है, तो आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस माइट बी द एग्जाम्पल विच यू वुड लाइक टू स्टार्ट विथ, एंड फिर आप उनको थोड़ा सा ये वाला एग्जाम्पल भी देके एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कोई आपके दोस्त को एक्सप्लेन कर रहे हो जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, सो आप उसको ये एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो यू कैन स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल एज वेल। ठीक है, तो आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बन गई है। ओके, सो अभी देखो क्या होता है कि लेट्स नाउ डाइव इनटू द प्रोसेस। ठीक है, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने समझ लिया क्या होता है सैम्पलिंग करके। नाउ लेट्स गेट इनटू कि क्या एग्जैक्टली उसका सर्किट है या क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है जिसमें हम सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं। देखो, सो यहाँ पे आपके पास जो है यू हैव अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, यू हैव अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल विच इज प्रेजेंट इन द नेचर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट इन नेचर। ओके, एंड लेट्स नेम दैट एज एम ऑफ टी। ठीक है, एम ऑफ टी नाम दे देता हूँ मैं उसको। अभी एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है हम एम ऑफ टी पे पुट अप करने वाले हैं, वो ये है कि एम ऑफ टी विल बी अ बैंड लिमिटेड सिग्नल। ठीक है, ये एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है। व्हाट डू यू मीन बाय बैंड लिमिटेड सिग्नल? बैंड लिमिटेड सिग्नल का मीनिंग ये होता है कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो नॉन जीरो होगा ओनली फॉर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सो अगर एम ऑफ टी, लेट्स से आपका एम ऑफ टी जो है वो कुछ ऐसे दिखता है। लेट्स से योर एम ऑफ टी लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, ये ऐसे जाएगा, ये पीछे की तरफ ऐसे मूव करेगा। दिस इज योर एम ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एम ऑफ ओमेगा, ओके, इसका एम ऑफ ओमेगा जो हो जाएगा, this is m of omega with respect to omega, it will be non-zero only for a fixed interval of time, fixed interval of frequencies. ठीक है, तो this is going to be 0, this is going to be omega m, this is going to be minus omega m. so इसके आगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो जीरो वैल्यूज देगा। सो एक फाइनाइट बैंडविड्थ में ही ये सिग्नल जो है वो प्रेजेंट होने वाला है। इसका मीनिंग है बैंड लिमिटेड। ओके, इसका अपना एक स्पेसिफिक रीज़न है। क्यों रीज़न है समझ लो, क्योंकि फाइनाइट सिग्नल्स चाहिए। हमारा पर्पज़ यही है कि हमें सब कुछ फाइनाइट रखना है। वी डोंट वांट थिंग्स टू बी गोइंग इनफाइनाइट। समझ में आया आप लोग को? इसलिए हम जो है एक बहुत ही बैंड लिमिटेड सिग्नल को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पुटिंग दिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू अ सैम्पलर। ओके, तो आप इसको सैम्पलर में दे देते हो। ठीक है, सो दिस इज अ सैम्पलर। सैम्पलर मतलब कुछ नहीं है, एक तरह से मल्टीप्लायर सर्किट ही है। ओके, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप दो क्वांटिटीज को, तो ऑब्वियसली एक क्वांटिटी आपने यहाँ पे दे दी, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? तो दूसरी क्वांटिटी इज बेसिकली योर इम्पल्स ट्रेन। ठीक है, इम्पल्स ट्रेन आप देते हो यहाँ पे, जिसका ये इक्वेशन आप लिख सकते हो समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल ऑफ t माइनस एन टी एस। ओके, सो आपका इम्पल्स ट्रेन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सो ये ऐसे इम्पल्सेस यहाँ पे होंगे। ओके, दिस इज 0, दिस इज ts, दिस इज 2ts एंड सो ऑन। पीछे भी ऐसे ही मूव करेगा। दिस इज t एंड दिस इज बेसिकली योर इम्पल्स ट्रेन। सो लेट्स से दिस इज योर c ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। ये कुछ ऐसा सिग्नल आपको दिखेगा। अब इम्पल्स ट्रेन क्यों? देखो, इसका भी अपना एक रीज़न है, समझ लो। ठीक है, लेट्स से कि ओके, देखो एग्जाम्पल लो यहाँ पे, ये एक आप पेपर है आपके पास। ठीक है,
ये आपके पास एक पेपर है। इंपल्स ट्रेन क्या करता है, देखो इंपल्स ट्रेन मतलब क्या है, इसकी वैल्यू सिर्फ डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स में प्रेजेंट है, बीच में जिसकी वैल्यू कोई अगर आपको पूछता है तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो। सो मतलब इसका क्या है, सी ऑफ टी का वैल्यू है टी इक्वल्स टू ts/2, सैम्पलिंग टाइम ts/2 के बीच में अगर पूछते हैं, लेट्स से मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सो आप मुझे बताओगे इट्स वैल्यू इज जीरो। ओके, सो ये डिस्क्रीट सिग्नल है, एक तरह से डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल है ये। ओके, सो लेट्स से ये कंटिन्यूस सिग्नल है आपके पास, आपका एक कोई भी पेपर ले लो, ये कंटिन्यूस सिग्नल है। ओके, एंड मैं क्या करता हूँ, स्लिट्स बना देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग सम स्लिट्स ऑन टू दिस। ओके, और अब मैं क्या करता हूं, ये वाला पार्ट है ना, इसको कट कर देता हूं, ठीक है, ये वाले पार्ट को मैं कर देता हूं कट। ओके, नाउ वॉट एवर रिमेन्स विथ मी इज माई डिस्क्रीट सिग्नल, करेक्ट है। और अब भी समवॉट आपका जो पेपर है वो पहले जैसे ही दिख रहा है। ओके, समझ में आया आप लोग को, ये बचा हुआ पार्ट जो है वो अभी भी समवॉट एक पेपर की तरह ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आई नो कि थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक सब चेंज हो गए उसके, लेकिन समवॉट अभी भी वो सेम ही है पहले जैसे, राइट, एग्जैक्टली। तो अभी ये जो इंपल्स ट्रेन है वो वही काम करता है। व्हाट डज दिस इंपल्स ट्रेन डज इज कि ये इस सिग्नल के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंस्टेंट्स में से वैल्यू पिकअप करेगा जहां पे ये इंपल्स प्रेजेंट हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्नल्स, बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, सो यू वेरी वेल नो कि अगर ये दो सिग्नल्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है, करेक्ट है। ओके, सो एक तरह से समझ लो ये कैसे दिखेगा। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये सिग्नल कुछ ऐसे दिखेंगे कि ये ऐसा है, दिस विल बिकम अ डिस्क्रीट सिग्नल। सो इसका ये जो एनवलप जैसे दिखेगा इसके ऊपर, ठीक है, देखो दिस इज योर 0, नाउ 1 2 3 4, ठीक है, दिस इज ts, दिस इज 2ts, दिस इज 3ts एंड सो ऑन, करेक्ट। ओके, ये ts नहीं होगा एक्चुअली, नाउ दिस विल बी fs बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, सो 2fs हो जाएगा यहाँ पे, 2fs, दिस इज 3fs एंड सो ऑन बेसिकली। और यहाँ पे कुछ इंपल्सेस प्रेजेंट होंगे, देखो ये ऐसे इंपल्सेस के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इस ओरिजिनल सिग्नल को, ठीक है, देखो, ठीक है, कुछ ऐसे आपका सिग्नल जो है अब दिखने लगेगा, मतलब ये जो सिग्नल है वो अब दिखने लगेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, नहीं समझ में आया। ओके ओके, लेट्स गो बिट स्लोली, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा बेटर क्लैरिटी भी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में भी चलते हैं तो शायद थोड़ा और बेटर समझ में आएगा कि कैसे ये fs आया 2fs, ठीक है। देखो अभी भूल जाओ, चलो भूल जाओ, ये नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, भूल जाओ इस चीज़ को। अब दो सिग्नल्स का क्या हो रहा है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मुझे बताओ ये क्या है, m ऑफ t है मल्टीप्लाइड विद डेल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। देखो इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे बताओ, m ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ समेशन ओवर n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, डेल ऑफ t माइनस ऑफ NTS। ओके, ये दो सिग्नल्स का आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा, तो अब मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन करस्पॉन्ड्स टू कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। हमें पूरा इंटरेस्ट कहाँ है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंटरेस्ट है, बिकॉज अभी जो मैंने ड्राइंग किया था वो क्या था, फ्रीक्वेंसी डोमेन का ड्राइंग था, तो अभी पूरा इंटरेस्ट हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हम ये पूरे चीज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज टाइम डोमेन में तो ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, समझ में आ जाएगा। देखो ये m ऑफ t है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे सैंपल्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो बीच का एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो m ऑफ ओमेगा जो ड्रॉ किया था ना, जस्ट फॉरगेट दैट, ठीक है, वो छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था, वो एक्चुअली m ऑफ t मुझे वहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए था, मैंने गलती से m ऑफ ओमेगा ड्रॉ किया था, तो जस्ट डोंट लुक इनटू दैट पार्ट, इसलिए अभी पूरा वापस से हम इस चीज़ को एक मैथमेटिकल फॉर्म में समझ रहे हैं, ठीक है। देखो अब ये ऐसे फॉर्म में है, इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं, तो m ऑफ t विल बिकम m ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूटेड विथ, ओके, कॉन्वोल्यूटेड विथ ये इंपल्स ट्रेन है ना। अब इंपल्स ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म आप पता है आप लोग को क्या है, देखो हमने ये चीज़ पहले भी करा हुआ है, 1/ts समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा s। ओके, पीरियोडिक
कैसे करते हैं मुझे बताओ, पीरियोडिक सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हो आप? द फॉर्मूला इज 2 पाई CN डेल ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, यही होता है उसका फॉर्मूला, करेक्ट है, जानते हो आप लोग इस चीज़ को, बहुत बढ़िया। सो ये 1/TS है, इसको मैं बाहर ले लूँगा, ओके, सो दिस विल बिकम 1/TS m ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूटेड विद द इम्पल्स ट्रेन, ओके। सो एक तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो m ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूटेड विथ, देखो कॉन्वोल्यूटेड विथ, देखो लेट्स से मैं कोई फाइनाइट वैल्यू की बात करता हूँ, कुछ 2-3 सैम्पल्स लेके मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को। अगर मैं 3 सैम्पल्स यहाँ पे अगर कंसिडर करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, बराबर है। अब x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विद डेल ऑफ t क्या होता है ये पता है आप लोग को, x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विद डेल ऑफ t माइनस टी नॉट, ये भी रिजल्ट आप जानते हो। तो अब उसी रिजल्ट का यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा पता है, 1/TS दिस विल बिकम, ये m ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस हो जाएगा, m ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस हो गया, प्लस m ऑफ ओमेगा हो जाएगा कॉन्वोल्यूशन ऑफ दीज 2 टर्म्स, एंड इसका और इसका कॉन्वोल्यूशन करूंगा तो हो जाएगा m ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये ओके, ये ओमेगा प्लस ओमेगा एस है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा एस हो जाएगा, और ये m ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अब जनरलाइज लिख दूं ये वाली चीज के लिए, अगर ये जनरलाइज फॉर्म में लिखने जाऊं तो वो कैसा जनरलाइज फॉर्म दिखेगा, देखो, सो दैट जनरलाइज फॉर्म विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये चीज को मैं निकाल देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कैसे वो चीजें हो रही है। सो द जनरलाइज फॉर्म फॉर दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, देखो, दैट विल बी 1/TS summation over n equals to minus infinite to plus infinite m of omega minus n omega s, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो दिस विल बी द फोरियर स्पेक्ट्रम, ओके। अब इसी चीज को हमें करना है प्लॉट, हमें देखना है कि एग्जैक्टली आपका मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कैसा दिख रहा है। टाइम डोमेन में तो समझ में आ गया कि ये जो पहले कंटिन्यूअस सिग्नल था, जब इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब सिर्फ सैंपल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, देखिए सिर्फ सैंपल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब उसका ये जो सिग्नल है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब मैं लेता हूं तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये है। अब हमें देखना है कि उसको ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, तो वो देखते हैं। ओके, सो ठीक है, वो एक्सप्रेशन हम ये रख देते हैं, इस चीज़ को अभी मैं हटा दूंगा बिकॉज आपको अभी आइडिया है कि हम क्या बात कर रहे हैं, ओके। केयरफुली देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा इसका फिगर जो है वो, और सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स, ओके। और फिर एक ब्रीफ समरी मैं आपको दे दूंगा कि कैसे हमने ट्रांजिशन किया पूरे प्रोसेस में। तो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहेगा वो सब कुछ अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो इसका जो फोरियर स्पेक्ट्रम है वो दिखने लगेगा कुछ इस तरह से, देखो, दिस इज योर m ऑफ ओमेगा, m ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूटेड विथ योर दिस थिंग, दिस एक्सप्रेशन 1/TS summation over n equals to minus infinite to plus infinite and del of omega minus n omega s, ठीक है। तो ये जो पूरा चीज किया हुआ है, उसका ये फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें मिला हुआ है, उसका रिजल्ट अब कुछ दिखेगा इस तरह से। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ओके, जस्ट अ सेकेंड ना, देखो, लेट्स मेक इट लाइक दिस, ओके ओके, नाउ वी हैव इनफ स्पेस हियर। So now this is m of omega with respect to your omega। अब देखो, ये आपका एक सैंपल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, देखो 1/TS दिस थिंग। सो n इक्वल्स टू 0 के लिए, n इक्वल्स टू 0 के लिए व्हाट सैंपल डू वी हैव, 1/TS m ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ओके। सो ये m ऑफ ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1/TS के बराबर, ओके। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दिस विल बी ओमेगा m, दिस विल बी माइनस ओमेगा m, ठीक है। ये हमने देखा था जो मैसेज सिग्नल है m ऑफ ओमेगा वो प्लस ओमेगा m से लेके माइनस ओमेगा m के बीच में ही रहेगा, इट्स अ बैंड लिमिटेड सिग्नल। अब n इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग, n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, चलो प्लस माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग m ऑफ 1/TS हो जाएगा, m ऑफ ओमेगा दैट विल बी, n को अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो n इक्वल्स टू -1 के करस्पॉन्डिंग दिस विल बी m ऑफ ओमेगा प्लस माइनस ऑफ ओमेगा s, ठीक है। तो अभी ये सिग्नल एक बार राइट शिफ्ट करेगा, एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेगा। फॉर n इक्वल्स टू +1 इट विल बी राइट शिफ्टेड, फॉर n इक्वल्स टू -1 इट विल बी लेफ्ट शिफ्टेड, ठीक है। तो अब देखो, लेट्स से ये है हमारा ओमेगा s
और ये है हमारा एक दूसरा सिग्नल, ठीक है। दिस विल बी ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम, दिस विल बी ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी बनेगा। अब मैं उस पार्ट वाला चीज़ नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाओ। जो यहाँ पे है एग्जैक्टली यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा एट माइनस ओमेगा एस, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम हो जाएगा, और ये है माइनस ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, ठीक है। जस्ट इग्नोर दैट पार्ट, आप समझ गए हो इस चीज़ को। तो ये जो यहाँ पे है एग्जैक्टली वहाँ पे उसका एक मिरर इमेज बनते जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। सो इसका एम्पलीट्यूड अभी भी 1/TS के बराबर ही रहेगा, ओके। अभी हमें एम्पलीट्यूड से कोई भी संबंध नहीं है, बट एम्पलीट्यूड क्या होगा ये भी आपको पता है, ओके। बहुत बढ़िया। अब देखो, सो फाइनली ये है हमारा फाइनल फोरियर स्पेक्ट्रम। सैंपल्ड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन जो रिजल्ट है वो दिखेगा कुछ इस टाइप का। समझ में आई चीज, ओके। तो फाइनली हमें ये देखना था, जिसके लिए हमने वो पूरा प्रोसेस चलाया है, ओके। तो अभी विद इन 2 मिनट्स पूरा का पूरा समरी मैं आपको देता हूं, पूरा का पूरा आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहां पे सारे इक्वेशंस लिख दूंगा, यहां पे सारे रिजल्ट्स जो है उनको लिख दूंगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी, ओके। आई होप आपको कोई समझ में आ रहा है ये चीज़ को मैंने यहाँ पे कैसे पुट किया है वगैरह। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी एकदम क्विक समरी जैसा देख लो, अभी तक हमने जो भी किया हुआ है, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हुआ हो इस चीज़ में तो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑल राइट, देखो देखो देखो, अभी यहाँ पे मैं इक्वेशंस लिखते जाऊंगा और एक तरफ हम क्या करेंगे, उसका ड्राइंग बनाते जाएंगे। विल ट्राई टू पुट इट इन द ग्राफिकल फॉर्म। तो हमने एक यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पलर है जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं एज अवर एम ऑफ टी विच इज़ अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया था इम्पल्स ट्रेन, ओके। इम्पल्स ट्रेन हमने दिया हुआ था यहाँ पे, एंड करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे मिल गया था सैम्पल्ड सिग्नल, ओके। सैम्पल्ड सिग्नल, सैम्पल्ड सिग्नल को मैं एस ऑफ टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन विल बी एस ऑफ एफ, ओके। इम्पल्स ट्रेन जो है उसका ये था एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस, ओके। एम ऑफ टी है, ये कोई ऐसा सिग्नल था हमारे पास विच लुक समथिंग लाइक दिस, गोज लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस, ओके। तो सबसे पहली चीज हमने देखी थी, ये क्या करता है सैम्पलर, सैम्पलर जस्ट मल्टीप्लाइज, सैम्पलर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो सबसे पहला रिजल्ट हमने यहाँ पे देखा था वो ये था, ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू सिग्नल्स एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड विद द दिस थिंग। सो एम ऑफ टी multiplied with your impulse train, that is summation n equals to minus infinite to plus infinite del of t minus nts, ओके। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग हमें रिजल्ट कुछ इस तरह का मिल गया था कि हमने देखा था इनिशियली माय मैसेज सिग्नल वाज ऑफ द कंटिन्यूस नेचर, ओके। लेकिन इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अब वो डिस्क्रीट इंटरवल्स में प्रेजेंट है, ओके। वो डिस्क्रीट इंटरवल्स पे एक इम्पल्स ट्रेन की तरह प्रेजेंट है। ये देखो, ये एक इम्पल्स ट्रेन की तरह प्रेजेंट है, ओके। और इसके जो इम्पल्सेस है उसके क्या सैंपल्स है, दिस इज 0, दिस इज टीएस, दिस इज 2ts एंड सो ऑन। ये nts के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। पीछे साइड में -ts हो जाएगा, -2ts हो जाएगा एंड सो ऑन। कुछ इस तरह से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें दिखेगा। दिस इज बेसिकली योर एस ऑफ टी, ठीक है। तो ये है हमारा एस ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू nts, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू nts बिकॉज वी आर डिस्क्रिटाइजिंग द सिग्नल, ओके। तो अब इसी चीज का जब फोरियर फॉर्म में हम इसका रिप्रेजेंट देख रहे थे तो क्या हो रहा था, देखो मल्टीप्लीकेशन बिकम्स कॉन्वोल्यूशन, ओके। एम ऑफ टी का फोरियर स्पेक्ट्रम जो था वो दिखने में कुछ इस तरह का था, ठीक है। एम ऑफ ओमेगा वॉज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, दिस वॉज योर एम ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। हमने बोला था जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो बैंड लिमिटेड है, इसका मतलब ओमेगा एम और माइनस ओमेगा एम, इस इंटरवल के बाहर इस सिग्नल की वैल्यू जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसका वो 0 है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो सो ये क्या हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया हुआ था, एम ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूटेड विद दैट पार्ट, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ कॉन्वोल्यूशन। उस इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/ts summation over n equals to minus infinite to plus infinite m of omega minus n omega s,
ओके, सो अब इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये था 1/ts समेशन ओवर n इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट m ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा s। ठीक है, ये डेल्टा है, सॉरी दिस वाज डेल्टा, और ये कॉन्वोल्यूट करने के बाद m ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा s के बराबर आ जा रहा था। ओके, फिर फाइनली वहाँ उस s ऑफ t का जब फोरियर स्पेक्ट्रम निकाले हमने s ऑफ f, तो वो s ऑफ f कुछ इस तरह से दिख रहा था। देखो that s of f looks something like this. So let's say s of omega लिख देते हैं इसको, s of omega with respect to omega. Okay, so it was looking something like this. ओके, इसका पीक एम्पलीट्यूड था 1/ts, सबका पीक एम्पलीट्यूड जो है 1/ts के बराबर है। दिस वाज 0, दिस इज ओमेगा m, दिस इज माइनस ओमेगा m, ओके, दिस इज ओमेगा s, दिस इज ओमेगा s प्लस ओमेगा m, एंड दिस इज ओमेगा s माइनस ओमेगा m। ओके, ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। हमें पहुंचना था यहाँ पर, जो शुरुआत की थी हमने इस पूरे प्रोसेस को करने की। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्चुअल पिक्चर कि नाइक्विस्ट रेट और सैम्पलिंग थियरम क्या है। ओके, सो लेट्स सी। ऑल राइट, सो सैम्पलिंग थियरम क्या बोलता है? देखो, सैम्पलिंग थियरम स्टेट्स दैट कि अ सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स सैम्पल्स, ओके, एंड कैन बी रिकवर्ड बैक। ओके, एक चीज समझो, आपने इनिशियली ऐसा सिग्नल दिया हुआ था। ओके, लेट्स से एक एग्जांपल ले लो आप कि एक लाउड स्पीकर है आपके पास। ओके, लाउड स्पीकर पे जब आप बात कर रहे हो, इट इज़ ऑफ द कंटिन्यूस नेचर। वो उस लाउड स्पीकर के अंदर जाता है, वो एम्पलीफाई करके बाहर आपको आउटपुट देता है। तो एक चीज़ समझो, अगर मैं बोलता हूँ हेलो माइक टेस्टिंग और मुझे आउटपुट में आ रहा है हेलो बाय बाय, इसका मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट में कोई रिलेवेंस ही नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है? समवेयर रिकवरी ऑफ द सिग्नल में प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब क्या? हमने ये सारा ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किया। सबसे पहले कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रिटाइज किया, डिस्क्रिटाइज करने के बाद उसके ऊपर एम्पलीफिकेशन परफॉर्म किया, एम्पलीफिकेशन करने के बाद हमने एनवलप डिटेक्टर लगा के, मतलब क्या, एक तरह से सिग्नल की रिकवरी करने की कोशिश की, और रिकवरी के टाइम पे हमें गलत सिग्नल मिल रहा है और वो गलत सिग्नल आउटपुट में जा रहा है। समझ में आया? तो वो रिकवरी का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट कैन बी रिकवर्ड बैक फ्रॉम इट्स सैंपल्स। ये जो सैंपल्स हमने जनरेट किए हुए हैं, देखो ये जो सैंपल्स हमने जनरेट किए हैं, इन सैंपल्स से हम ओरिजिनल सिग्नल को तभी रिकवर बैक कर सकते हैं जब ओमेगा s इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 ओमेगा m। ओके, ये कैसे आया ये अभी मैं बताऊंगा। ये ओमेगा इज ग्रेटर दैन 2 ओमेगा m क्यों आता है, ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये कंडीशन पहले मैं लिख देता हूँ। फॉर रिकवरी ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, ओमेगा s जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 ओमेगा m होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। ओके, नाउ लेट्स सी वेयर दिस कंडीशन कम्स फ्रॉम। देखो, यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि हमें उस ग्राफ की जरूरत है। यहां पे देखो, अब एक चीज ध्यान देना, अगर ये जो दो सिग्नल्स हैं इनके बीच में कोई स्पेसिंग दिख रही है आपको अभी फिलहाल? ओके, इसका मतलब क्या है? ये सिग्नल में और ये सिग्नल में किसी भी तरह का ओवरलैप नहीं है। करेक्ट है? अगर दोनों में ओवरलैप हो जाए तो ऑब्वियसली हमें करप्टेड मैसेज मिलेगा, एक तरह से एरर जनरेट होगा। इस मैसेज की इंफॉर्मेशन और इस मैसेज की इंफॉर्मेशन क्या हो जाएंगी? ओवरलैप हो जाएंगी, रिजल्टिंग इन अ रॉन्ग मैसेज एट द आउटपुट। जो अभी मैंने केस आपसे डिस्कस किया वो कुछ उसी टाइप का एग्जाम्पल था। ओके, तो हम चाहते हैं कि ये जो दोनों के बीच का स्पेस है वो बरकरार रहे। ओके, सो व्हाट वी से हियर दैट, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है? ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम है। ओके, व्हाट वी आर सेइंग, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम must be greater than or equals to omega m। ठीक है, लेट्स से ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, ये जो फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से वी आर सेइंग दिस इज 5 हर्ट्ज, ओमेगा एम जो है वो है 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका मतलब 5 हर्ट्ज ग्रेटर देन 2 हर्ट्ज हो रहा है। करेक्ट बात है। ये फ्रीक्वेंसी बैंड पे आप इसको समझने की कोशिश करो। मान लो ये आपका ओरिजिन है, दिस इज 0। मान लो ये जो आपका सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ है 2 किलोहर्ट्ज, मतलब यहाँ पर ये सिग्नल 2 हर्ट्ज तक हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये माइनस वाली पार्ट आप कंसिडर मत करो, -2 हर्ट्ज वगैरह भी है यहाँ पे। ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को ही कंसिडर करते हैं। सो ये देखो, ये सिग्नल है आपका 2 हर्ट्ज तक प्रेजेंट है, और ये जो नया सिग्नल स्टार्ट हो रहा है वो है 5 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि ये सिग्नल भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करे।
इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, वो इस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके आप ओवरलैप को अवॉइड कर सकते हो। ये बात आप जानते हो, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा एम। इसका मतलब ओमेगा एस जो है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस ओमेगा एम को यहाँ पुट कर दूंगा, 2 ओमेगा एम के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आता है कि जब आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मैसेज सिग्नल, तब हम सिग्नल को एफिशिएंटली रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें हम 3 केसेस को देखते हैं। देखो, फर्स्ट केस की बात करूं मैं कि अगर मैं मान लेता हूं कि ओमेगा एस लेस दैन 2 ओमेगा एम है, ठीक है, तो हम बोलते हैं इट्स अ केस ऑफ अंडर सैम्पलिंग एंड ऑब्वियसली दिस इज बाउंड टू गेट एरर्स, ठीक है, इसमें एरर्स प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड केस, ओमेगा एस इक्वल्स टू 2 ओमेगा एम। इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल सैम्पलिंग, ठीक है, बिकॉज आपने जस्ट इन 2 सिग्नल्स को जस्ट टच करा हुआ है। देखो, ये दिखने में कुछ इस तरह से होगा, ये सिग्नल ऐसे यहाँ पे क्लोज हो गया, दूसरा सिग्नल ऐसे, तो ये दोनों एकदम टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ओमेगा एस इक्वल्स टू 2 ओमेगा एम, ये बहुत ही क्रिटिकल सैम्पलिंग का केस है। और इसी को हम बोलते हैं नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग, ठीक है, ये नाइक्विस्ट ने दिया हुआ कंडीशन है। थर्ड केस इज ओमेगा एस ग्रेटर दैन 2 ओमेगा एम है। मतलब क्या है, अब ये सिग्नल थोड़ा सा दूरी से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 2 सिग्नल्स के बीच में अच्छा खासा गैप भी प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं ओवर सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होती है, ओके, एंड करस्पॉन्डिंगली हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। एरर्स यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगी क्योंकि 2 सिग्नल्स का ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे एक क्रिटिकल सैम्पलिंग का केस है जहाँ पे जस्ट दोनों सिग्नल्स एकदम स्टार्ट हो रहे हैं, एंड यहाँ पे ओवर सैम्पलिंग मतलब देयर इज सफिशिएंट स्पेस बिटवीन द 2 सिग्नल्स इन द फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। ओके, ऑल राइट। सो ये था बेसिक आइडिया अबाउट योर सैम्पलिंग, ओके। ये था नाइक्विस्ट रेट का कंडीशन जहाँ पे ओमेगा एस इक्वल्स टू 2 ओमेगा एम हमारे पास प्रेजेंट है, ओके। नाउ आई होप आप लोग को ये पूरा आइडिया जो है, जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है, वो पूरी तरह से समझ में आ गया हो, ओके। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी अगर फिर भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट में डालना। मैंने जानबूझ के समराइज इसीलिए किया इस चीज़ को ताकि आप लोगों को एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे डेवलप हो जाए, ओके। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइक्विस्ट रेट, एंड फिर लास्ट में हम रिकवरी की बात करेंगे बिकॉज हमने सिग्नल को डिस्क्रिटाइज किया ना, तो लेट्स वर्क विद द डिस्क्रिटाइज सिग्नल एंड देन विल ट्राई टू रिकवर बैक द सिग्नल, ओके। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइक्विस्ट रेट। ऑल राइट, सो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नाइक्विस्ट रेट। तो कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल होता है ये फंडा। देखो, अभी हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारे पास अगर लेट्स से सिग्नल है टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो नाइक्विस्ट रेट रहेगा दैट विल बी एफ एस इक्वल्स टू 2fm, ओके। ये बात जानते हैं, दैट इज द बेसिक नाइक्विस्ट रेट, ओके। ये नाइक्विस्ट रेट का डेफिनेशन है, ओके। सो अभी लेट्स से फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर सिग्नल में टाइम शिफ्टिंग होता है तो क्या नाइक्विस्ट रेट में कोई चेंजेस होंगे, तो वो देखना है। सो लेट्स से एफ ऑफ टी प्लस माइनस ऑफ टी नॉट कोई ऐसा सिग्नल है, तो नाइक्विस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आते, अभी भी एफ एस इज इक्वल्स टू 2fm ही रहेगा, ओके। ये चीज़ हम जानते हैं, टाइम शिफ्टिंग इज अ वेरी इनोसेंट ऑपरेशन, कोई भी मॉड्यूलेशंस परफॉर्म नहीं होते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ओके। फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर आप ये सब चीज़ें देख चुके हो इस चीज़ को, ओके, फाइन। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज टाइम स्केलिंग। सो ऑब्वियसली टाइम स्केलिंग में फर्क तो पड़ता है बिकॉज टाइम पीरियड इटसेल्फ इज गेटिंग चेंज, तो टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी अपने आप चेंज हो ही जाएगी, ठीक है। सो दैट बिकम्स एफ ऑफ एस, एक सेकेंड, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ fm, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज पावर्ड। पावर्ड मतलब क्या कि अगर एफ ऑफ टी का स्क्वायर, ऐसे मैं आप लोग को सिग्नल दे दूं एफ ऑफ टी का स्क्वायर या एफ ऑफ टी रेज टू n, कुछ इस टाइप का अगर सिग्नल दे दूं तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस इज इक्वल्स टू nfm के बराबर हो जाएगी, ओके, फाइन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब क्या, d बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी टाइप सिग्नल है या आपके पास सिग्नल है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, तो ऐसे केस में भी एफ एस जो है वो अभी भी चेंज नहीं होगा। सो एफ एस इज इक्वल्स टू एफ एस इक्वल्स टू 2fm ही यहाँ पे रहने वाला है, ओके। सो योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज एट ऑल। मल्टीप्लीकेशन, ओके। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखो,
मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या कि अगर दो सिग्नल्स का टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे f1 ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ f2 ऑफ t, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है fm1, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है fm2। सो इन दो सिग्नल्स की लेट्स से g ऑफ t ये मेरा सिग्नल है विच इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू सिग्नल्स, तो g ऑफ t का जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ fm1 प्लस fm2। ओके, एक और कैटेगरी होता है f1t कॉन्वोल्यूटेड विथ f2t, वो चीज़ जो है मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप वहाँ पे ही सीखेंगे उस चीज़ को। ओके, तो बस यही है ये प्रॉपर्टीज ऑफ नाइक्विस्ट रेट। ओके, नाउ फाइनली द लास्ट पार्ट जो हमें देखना है वो है द रिकवरी ऑफ योर सिग्नल्स, एंड एक बैंड पास सैम्पलिंग का भी केस यहाँ पे मैं कवर कर लूँगा। ओके, सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं, वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो नाउ। ओके, सो अभी हम बात करते हैं सिग्नल रिकवरी की। ठीक है, देखो लेट्स से अभी हमने क्या प्रोसेस स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास एक सैम्पलर है यहाँ पे। ओके, इस सैम्पलर को हम क्या दे रहे थे, एक मैसेज सिग्नल, एक कंटिन्यूस टाइम मैसेज सिग्नल दे रहे थे m ऑफ t। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पल्स ट्रेन प्रेजेंट थी। ओके, दिस इज अ इम्पल्स ट्रेन विच वी हैड विद अस। उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक s ऑफ t, ये एक सैम्पल्ड सिग्नल था। दिस इज अ सैम्पल्ड सिग्नल। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग s ऑफ f हमारे पास प्रेजेंट था यहाँ पे। तो ये एक बेसिकली क्या है, ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ठीक है, हमने कन्वर्ट कर लिया, हमने कंडीशंस भी देख ली कि क्या कंडीशन में आपको उसको डिस्क्रिटाइज करना पड़ेगा सो दैट वी कैन रिकवर इट। ओके, सो अब रिकवरी की बात करते हैं। रिकवरी कैसे करते हैं सिग्नल्स की? सो ऑब्वियसली व्हाट वी डू इज, इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम क्या करते हैं, एक लो पास फिल्टर से पास कर देते हैं। ओके, एंड करस्पॉन्डिंग हमें एक मिल जाता है m डैश ऑफ t, एंड वी अज्यूम दैट m डैश ऑफ t इक्वल्स टू m ऑफ t ओनली एंड ओनली इफ योर ओमेगा s वॉज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 2 ओमेगा m। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी यहाँ पे सैम्पलिंग करते टाइम, तो ही जाके आप जब उस सिग्नल को रिकवर करेंगे तो आपको ओरिजिनल सिग्नल की जैसे वो मिलेगा, वरना ऑब्वियसली वो ओरिजिनल सिग्नल जैसे नहीं मिलने वाला। ओके, सो इसलिए m डैश ऑफ t ओनली इफ ओमेगा s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ओमेगा m। कैसे? देखो s ऑफ f, इसका स्पेक्ट्रम कैसे दिख रहा था मुझे बताओ। सो इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से दिख रहा था। ओके, देखो दिस वाज s ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू f। ओके, ओमेगा लिखा था मैंने, s ऑफ ओमेगा, f के टर्म्स में आपको पता है कि डिवाइड बाय 2 पाई करना है, तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था आपको सिग्नल। ओके, सो दिस वाज 1/ts इसका एम्पलीट्यूड था, इसका भी 1/ts था। दिस वाज गोइंग फ्रॉम प्लस fm से लेकर माइनस fm के बीच में। ओके, यहाँ पे भी ये ऐसा था, माइनस fs था यहाँ पे, एंड दिस वाज प्लस fs एंड सो ऑन। सो आपको ये पता है। अब इस सिग्नल को क्या कर रहा हूँ मैं, पास करता हूँ एक लो पास फिल्टर से। ओके, लो पास फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को पिक करेगा, लो फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करेगा, हायर फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देगा। तो अगर इस चीज को मैं इसके ऊपर सुपर इंपोज करने की कोशिश करूं तो वो दिखेगा कुछ इस तरह से। देखो कि ये एक मेरा लो पास फिल्टर है, ये लो पास फिल्टर का जो ये है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो कुछ ऐसा है। लेट्स से दिस इज ओमेगा सी, दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज माइनस ओमेगा सी। सिर्फ इसके अंदर जितना भी पार्ट है सिर्फ उतना ही रिकवर हो पाएगा, बाकी के पार्ट जो है वो हो जाएंगे एलिमिनेट। तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमें रिकवर मिलेगा। सो यहाँ पे m ऑफ ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, एक इस फॉर्म का सिग्नल होगा। ठीक है, 1/ts के साथ। ओके, ये हो जाएगा fm और ये हो जाएगा माइनस fm के साथ। ठीक है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी f, दिस इज m ऑफ f, एंड इनिशियली हमारा जो सिग्नल था उसका भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कुछ इसी टाइप का दिख रहा था। दिस वाज प्लस fm, दिस वाज माइनस fm। सो वी कैन सेफली से कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था और अब जो हमारा रिकवर्ड सिग्नल है वो क्या है, सेम है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कुछ ये तरीका हमें लगाना पड़ता है। ओके, नाउ इफ वी आर सेइंग कि लेट्स से यहाँ पे भी एक कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये आइडियल लो पास फिल्टर ना। देखो ये एक आइडियल लो पास फिल्टर की मैंने यहाँ पे बात की है, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर की, देखो
अगर प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर अगर यहाँ पे आ गया तो क्या इसका यहाँ पे एक शार्प फॉल दिखेगा हमें? नहीं, शार्प फॉल नहीं दिखेगा। वो कैसे दिखेगा? देखो वो होगा कुछ इस टाइप का। देखो ये ऐसे स्लोली फॉल करके कुछ यहाँ पे चला जाएगा, ये स्लोली फॉल करके क्या हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब सम पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम पार्ट ऑफ दिस सिग्नल एंड सम पार्ट ऑफ दिस सिग्नल इज गेटिंग इंटरफियर्ड विद द ओरिजिनल सिग्नल। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या करेगा, एरर इंट्रोड्यूस करने वाला है। समझ में आया? ये क्या कर रहा है, एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है, विच इज नॉट अ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। तो जब हम प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर की बात करते हैं सो वी से कि ओमेगा एस मस्ट बी ग्रेटर दैन टू ओमेगा एम, और जब आइडियल लो पास फिल्टर की बात करते हैं तब हम बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा एम। ठीक है, समझ में आई ये बात? ओके अब एक छोटा सा और यहाँ पे एक एडिशन करना है, वो ये है कि क्वेश्चंस आते हैं जनरली यहाँ पे कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द सैंपल्ड सिग्नल। ओके, स्पेक्ट्रम तो आपने देख लिया होगा, स्पेक्ट्रम से हमें एक क्लियरली बात समझ में आ गई है, वो ये है कि द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट विल बी NFS प्लस माइनस ऑफ FM। देखो NFS मतलब n को 0 पुट करूँ, अगर n को 0 पुट करूँ तो प्लस माइनस FM तो होंगी ऑब्वियसली। देखो प्लस माइनस FM तो है ही, ये फ्रीक्वेंसीज तो है ही। अगर FS प्लस FM की बात करूँ तो ये फ्रीक्वेंसी है, वो FS माइनस FM मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, एंड ऑब्वियसली नेगेटिव स्केल पे भी वो प्रेजेंट है। मतलब n को अगर मैं -1 पुट करूंगा तो यहाँ वाला पार्ट मिलेगा, n को अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज डालूंगा तो इस साइड वाली सारी फ्रीक्वेंसीज हमें मिलते जाएंगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द सैंपल्ड सिग्नल, तो हम उसका रिजल्ट ये आएगा NFS प्लस माइनस ऑफ FM। ये आप ग्राफिकली भी इस चीज़ को समझ सकते हो। ओके फाइन। अब एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर ये मैसेज सिग्नल अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन होता, जैसे इसमें F1 ऑफ टी, F2 ऑफ टी, ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं। मतलब लेट्स से लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करूँ मैं, M ऑफ टी इज इक्वल्स टू M1 ऑफ टी प्लस M2 ऑफ टी, ऐसे कुछ हमारे पास मैसेजेस प्रेजेंट होते जहाँ पे M1 ऑफ टी की फ्रीक्वेंसी F1 है, M2 ऑफ टी की F2 है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो इंडिविजुअल सिग्नल्स को ट्रीट करो और करस्पॉन्डिंग ऐसे उसके रिजल्ट निकालो। तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट होगा NFS प्लस माइनस ऑफ FM1, NFS प्लस माइनस ऑफ FM2। तो ये ऐसा आपके पास एक लिस्ट बन जाएगा। ओके, आई होप मैंने हर चीज़ को यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके फाइन। सो नाउ एक लास्ट पार्ट, बैंड पास सैम्पलिंग, ये हो गया लो पास सैम्पलिंग। ओके क्योंकि यहाँ पे मैसेज जो है आपका वो पूरी तरह से लो फ्रीक्वेंसी पे प्रेजेंट था, लेकिन हो सकता है कि कभी कभार आपका जो सिग्नल है वो थोड़े से इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज पे प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि दिस वाज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 0 to FM, इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी बैंड। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कुछ इस फॉर्म का दिखेगा। ओके, इट माइट हैपन कि आपका जो सिग्नल है वो कुछ इस टाइप का दिखे। ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, दिस इज M ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू F, एंड दिस इज योर लोअर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर हायर फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे केस में ऐसे टाइप के सिग्नल्स है उसको आप कैसे सैम्पल करोगे? ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, दे देता हूँ, 2 मिनट में काम हो जाएगा। ओके देखो, स्टेप बाय स्टेप करो इस चीज़ को, इसमें कोई बहुत कंसेप्चुअल अलग अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे लो पास के लिए मैंने वो चीज़ आपको करके दिखाई, ये सेम आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बट वी नीड नॉट कॉम्प्लिकेट दिस वीडियो मच। तो सीधे सीधे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे आपको मैं चीज़ बता देता हूँ। अननेसेसरी हम नहीं चाहते कि आप लोग को कन्फ्यूजन बढ़े। ओके सो देखो, 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ओके देखो, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड FS, दैट इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बैंड पास सिग्नल। ठीक है, ऑफ बैंड पास सिग्नल, बैंड पास सिग्नल। ठीक है, BPS, तो बैंड पास सिग्नल। ठीक है, याद रखो सबसे पहला चीज होता है फाइंड द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू FH माइनस FL। देखो ये बैंडविड्थ है सिग्नल की, बस सबसे पहले बैंडविड्थ निकालो। स्टेप नंबर 2, K इज इक्वल्स टू FH अपॉन बैंडविड्थ। ये जो K है इसकी इंटीजर वैल्यूज ही हम कंसिडर करेंगे। तो लेट्स से 3.9 भी अगर आया आपको आंसर तो इसको आप लिखेंगे 3 के बराबर, 3.2 भी आया तो भी आप लिखेंगे 3 के बराबर। ठीक है, दिस इज सम वेरिएबल है, ठीक है, जो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। एंड थर्ड इज FS इज इक्वल्स टू 2FH अपॉन K।
बस खत्म, ये हो गया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का आपका आंसर। ओके बस ये इतना ही आप लोगों को थियोरी पार्ट में एक्सपेक्टेड है इन द सैम्पलिंग पार्ट। आई होप आप लोग को हर चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया हो। क्वेश्चंस करेंगे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये मॉड्यूल नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, सो वी वांट टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।